All right. So let's start today's class. Okay, we'll be continuing from where we left off yesterday. So ये हमने कल किया था. Heritability is the ratio of. Did we do this question yesterday? Heritability is the ratio of. None of None of the above. But actually किस चीज का ratio है heritability? What should I write here? Heritability is equal to dash upon dash. VG upon VP. Okay, Vg upon Vp. That's called heritability in the broad sense. That is denoted by capital H. And what about small h? H square. VA by VP. Va upon Vp. Okay. So in this case, the answer will be none of the above. Okay, because it's neither this. This will be translated into this. इस ऑप्शन का मतलब ये है. इस ऑप्शन का मतलब क्या है? वीजी वी ए अपॉन वीई. ओके, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन विल बी नन ऑफ द अबव. Then, measures of correlation between the repeated measurements of the same individual are known as. ये हम थोड़ा पीछे से चालू कर रहे हैं. कल जहां छोड़ा था वहां से थोड़ा एक आध दो क्वेश्चन पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, आपका भी रिविजन हो जाएगा. सो ये सारे क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की कॉन्सेप्ट्स है. ठीक है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं. दीज आर ऑल क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स कॉन्सेप्ट्स. सो मेजर्स ऑफ कोरिलेशन between repeated measurements of the same individual are known as. Option number A, repeatability. सही है, Dr. Sham is correct. Answer is option number A, repeatability, because it's called correlation because it is literally finding out whether the measurement which was, or rather the production performance which was there in the first production will be repeated in the second production or not. What is the relationship between the first and the second performance of the individual? Okay, तो ये correlation find out करती है repeatability. Okay, so the answer will be repeatability. Right. Okay, next. The causes responsible for genetic correlation between two characters are. किसको याद है ये आंसर? Pleiotropy and linkage. Pleiotropy and linkage. Very good. The answer is pleiotropy and linkage. What is pleiotropy? And what is linkage? Pleiotropy is one gene control many characters. One gene affects or controls many characters. Okay, very good. What is linkage? दो जीन पास पास है. ओके, दो जीन पास पास है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब क्या होगा उससे पास पास होने से? सेग्रीगेट नहीं हो पाते एक जनरेशन से. ओके, सेग्रीगेट नहीं हो पाते तो इससे क्या होता है? ये दोनों जीन्स क्या करती है? दो अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, राइट? ये जीन किसी और कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, कैरेक्टर वन, और ये जीन कैरेक्टर टू को कंट्रोल करती है. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एलील्स स्टिकिंग टुगेदर, दीज because there can be no segregation between these two genes. Okay, independent assortment नहीं हो सकता इन दो जीन्स का. इस वजह से सिंपली ये जो दोनों कैरेक्टर्स है ये हमेशा साथ में ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पैरेंटल टू ऑफस्प्रिंग. ओके, पेरेंट्स में भी यही दो कैरेक्टर्स नजर आएंगे. सपोज आप सपोज ब्लू आईज और ब्लैक हेयर की बात कर रहे हो, ये कॉम्बिनेशन है. ठीक है, ब्लू आईज एंड ब्लैक हेयर, दिस इज अ कॉम्बिनेशन. ओके, विच इज सीन इन द पेरेंट्स. ओके, यही कॉम्बिनेशन आपको प्रोजेनी में भी दिखाई देगा. क्यों दिखाई देगा? क्योंकि ये दोनों जीन्स क्या है, लिंक्ड है. हर बार आपको प्रोजेनी में यही कॉम्बिनेशन दिखाई देने का ज्यादा चांस होता है. ठीक है, तो उसको कहते हैं लिंकेज. इस वजह से दो इन दोनों जीन्स के बीच में या इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में क्या हो गया? जेनेटिकली कोरिलेशन हो गया है. ओके, जेनेटिकली कोरिलेशन हो गया है. इसीलिए ये हमेशा साथ में ट्रांसमिट होते हैं. ये दोनों कैरेक्टर्स जो है हमेशा
साथ में पाए जाते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्लियोट्रॉपी एंड लिंकेज। और इसमें से परमानेंट कॉज कौन सा था और टेम्परेरी कॉज कौन सा था? Dr. Abhi, which is the permanent cause of linkage and which is the temporary cause of linkage? Abhi, your Zoom handle is Abhi, which is the permanent cause and which is the temporary cause of linkage. Okay, yes, pleiotropy is what? Pleiotropy is permanent, okay? Pleiotropy is permanent because you can never break pleiotropy because वो एक ही जीन है जो दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, उसका इफेक्ट दो कैरेक्टर्स पे एक्सर्ट हो रहा है, इसलिए प्लियोट्रोपी क्या है? परमानेंट कॉज है जेनेटिक कोरिलेशन का। ओके, इट्स परमानेंट कॉज ऑफ जेनेटिक कोरिलेशन एंड लिंकेज इज द टेम्पररी कॉज ऑफ जेनेटिक कोरिलेशन बिटवीन टू कैरेक्टर्स। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। phenotype reflects the genotype more precisely when the heritability is, ये हमने लास्ट टाइम किया था। डॉक्टर विनय, इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर विनय, phenotype reflects the genotype more precisely when heritability is, Dr. Vinay, I hope everybody participates in the discussion. चैट बॉक्स में सही आंसर्स है। व्हेन हेरिटेबिलिटी इज हाई, उस टाइम पे फिनोटाइप विल रिफ्लेक्ट द जीनोटाइप मोर। ओके, इसका रीजन क्या होता है? याद है आपको इसका रीजन क्या है? जब हेरिटेबिलिटी ज्यादा है, हेरिटेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वी ए बाय वीपी, या मान लो वी जी बाय वीपी। ओके, हेरिटेबिलिटी फॉर्मूला है वी जी बाय वीपी, ठीक है। अब वेरिएंस को, फिनोटिपिक वेरिएंस को किस तरह से पार्टीशन किया जाता है? पार्टीशनिंग ऑफ वेरिएंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पार्टीशनिंग ऑफ वेरिएंस, पार्टीशनिंग ऑफ वेरिएंस। ओके, फिनोटाइपिक वेरिएंस को किस तरह से पार्टीशन करते हैं? वीजी प्लस वीई। वीजी मतलब किसी एनिमल का आपको जो फिनोटाइप नजर आ रहा है वो किस वजह से नजर आ रहा है? उसकी जीन्स की वजह से और उसका जो एनवायरनमेंट है जिसमें वो है उसकी वजह से, ठीक है। जैसे होल्स्टीन फ्रिशियन जो गाय है वो ठंडी में सबसे अच्छा परफॉर्म करती है, ना कि गर्मी में, ठीक है। तो उसके लिए ठंडा एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए होल्स्टीन फ्रिशियन गाय के लिए ठंडा एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस होल्स्टीन फ्रिशियन गाय को गर्म एनवायरनमेंट में जाके डाल दो तो अच्छे जीन्स होने के बावजूद वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी, क्योंकि वीई जो कंपोनेंट है उसका वो इट्स नॉट अ गुड कंपोनेंट। ओके, सो जो परफॉर्मेंस नजर आता है वो जीनोटाइप में बदलाव होने की वजह से और एनवायरनमेंट में चेंजेस होने की वजह से फिनोटाइप में भी चेंजेस होते हैं। अब एक बात याद रख लो कान हमेशा के लिए कि वेरिएंस जो है ये किसी इंडिविजुअल की नहीं होती। वेरिएंस बिलोंग्स टू अ पॉपुलेशन। वेरिएंस इज अ पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर का क्या मतलब है? आप वेरिएंस एक इंसान के लिए नहीं गिन सकते, वेरिएंस हमेशा पॉपुलेशन के लिए गिनी जाती है। तो ये जो फिनोटाइप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ये हम पूरे हर्ड के परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, एक इंसान के परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे, ठीक है। एक इंसान या एक जानवर जो भी है उसके परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही, पूरे हर्ड की या पूरे ग्रुप के परफॉर्मेंस की बात होती है, ठीक है। तो तब हम कह सकते हैं कि वो फिनोटिपिक वेरिएंस है, तब उसमें वेरिएशन आता है। ओके, सो फिनोटिपिक वेरिएंस इज इक्वल टू जीनोटिपिक वेरिएंस प्लस एनवायरमेंटल वेरिएंस, यानी कि जेनेटिक कंपोनेंट प्लस एनवायरमेंटल कंपोनेंट। अब हम कह रहे हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू वीजी अपॉन वीपी। एच स्क्वायर मतलब इसमें से जो ट्रांसमिसिबल कंपोनेंट है, ओके, इसमें से ट्रांसमिसिबल कंपोनेंट कौन सा है? जीनोटाइपिक वेरिएंस। यही आगे पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट हो सकता है, राइट? ये भी पूरा नहीं होता, बट वील डिस्कस दैट लेटर। सो वीजी इज द वन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइट? सो that's why we are including that in heritability. Okay, so heritability is equal to the fraction of phenotypic variance which can be transmitted to the next generation. That means the genotypic fraction of phenotypic variance is heritability. अब यही, अब हम लोग अगर कहेंगे कि हेरिटेबिलिटी ज्यादा है तो इसका क्या मतलब होता है? वीजी ज्यादा है
ओके, अगर हेरिटेबिलिटी ज्यादा है, हम बोल रहे हैं इसको ब्रॉड सेंस मान लो, अगर हम बोलेंगे हेरिटेबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या ज्यादा है, वीजी ज्यादा है। अगर वीजी ज्यादा है तो वीपी के पास ज्यादा कंट्रीब्यूशन किससे आता है, वीजी से आता है, ठीक है। वीपी के पास ज्यादा कंट्रीब्यूशन वीजी से आता है। हम वीजी को डायरेक्टली गिन तो नहीं सकते, राइट। किसको गिन सकते हैं हम, वीपी को गिन सकते हैं, हेरिटेबिलिटी को गिन सकते हैं फॉर्मूला फॉर्मूला से। ओके, हेरिटेबिलिटी का दूसरा फॉर्मूला है, उससे हम हेरिटेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं, और वीपी को भी हम मेजर कर सकते हैं, फिनोटाइपिक वेरिएंस को। तो इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हेरिटेबिलिटी किसी ट्रेट की ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जो भी फिनोटाइपिक वेरिएंस हमको नजर आ रही है उसका ज्यादा से ज्यादा मात्रा वीजी से कंट्रीब्यूट हो रहा है, ना कि वीई से, ठीक है। इसका मतलब एनवायरनमेंट जो है उसका कंट्रीब्यूशन वीपी की तरफ क्या है, नेग्लिजिबल है। ओके, तो वीजी अच्छा है, तो इसका मतलब फिनोटाइप इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ, फिनोटाइप मतलब ये, ओके, फिनोटाइप मतलब एनिमल का परफॉर्मेंस। फिनोटाइप इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ द जीनोटाइप ऑफ, okay, so phenotype reflects the genotype more precisely when heritability is high। okay, यही बात किसी ने कल की थी ब्रीडिंग वैल्यू को लेके। ओके, तो अगर जीनोटाइप अच्छा है, हम बोल रहे हैं, ओके, अगर हेरिटेबिलिटी ज्यादा है और फिनोटाइप भी अच्छा है, ओके, प्रोडक्शन ज्यादा है, तो इसका मतलब उस एनिमल का ब्रीडिंग वैल्यू भी अच्छा ही होगा, ठीक है। बिकॉज द हेरिटेबिलिटी इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ द जीन्स दैट इट इज कैरिंग। ओके, देयरफॉर व्हेन हेरिटेबिलिटी ऑफ योर हर्ड इज हाई एंड द production of that particular individual is more, you can consider that individual as a parent for the next generation। okay, so it is a good indicator of the breeding value of the individual as well। okay,